حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش۔ دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی مسیحی برادری کی کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ گرجا گھروں سمیت مسیحی آبادیوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ گرجا گھروں میں خصوصی دعائیں تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جبکہ سینٹا کلاس بھی بچوں میں گفٹ بانٹنے پہنچ گئے۔ گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل کرسمس کے نام کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش، مسیحی برادری کا بڑا تہوار۔ دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی کرسمس کی تقریبات جاری ہیں۔ سینٹ پیٹرک، ٹرینٹی چرچ، سینٹ لارنس، سینٹ پال سمیت شہر بھر کے گرجا گھروں میں خصوصی دعائیاں تقریبات جاری ہیں، جس میں ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں اور مسیحی آبادیوں میں کرسمس ٹری نصب اور برقی کمکموں سے سجاوٹ کی گئی ہے۔ سینٹا کلاس بھی بچوں میں گفٹ بانٹنے پہنچ گئے۔ مسیحی برادری کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ادھر شہر میں کرسمس کی مناسبت سے سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور ناظرین، کراچی میں کرسمس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرینٹی چرچ اور سینٹ پیٹرکس میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ برقی کمکموں سے سجی ان کی عبادت گاہیں مرکز نگاہ بن گئیں۔ مسیحی برادری کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو بھائی چارگی کا پیغام دیا۔ مزید جانیں گے ممتاز شبری کی اس رپورٹ میں۔ کرسمس کا تہوار آیا، خوشیاں لایا۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی کرسمس پر مذہبی جوش و خروش۔ کراچی کے ٹرینٹی چرچ اور سینٹ پیٹرک چرچ میں خصوصی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مسیحی برادری کا ملکی ترقی میں اہم کردار، تمام مذاہب کے لوگوں کو بھائی چارگی کا پیغام دیا۔ ایک دوسرے کے گھر جا کے، ایک ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا کھا کے، بہت سارے کیک کھا کے، کیونکہ جتنی بھی ہم کیلوریز پٹ آن کرتے ہیں وہ ان دنوں میں کرتے ہیں لوگوں کے گھر جا کے، مٹھائیاں کھا کے۔ تو اٹس بڑی فن۔ پورے سال جو ہم لوگ جن رشتے داروں سے نہیں مل پاتے تو ہم ان سے ملتے ہیں، تو اٹس کوائٹ فن۔ اور صرف یہ میں بولنا چاہوں گی اور میسیج دینا چاہوں گی کہ میک دس ورلڈ اے پیسفل پلیس، اینڈ دیٹس اٹ۔ پیغام یہی ہے، پیس اینڈ یونٹی فار آل۔ میری کرسمس۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں انہیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ اپنی تقریبات آزاد طریقے سے منا رہے ہیں۔ آج کا دن ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ جیزس کرائسٹ کی پیدائش ہوئی تو وہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہے، تو انہوں نے ہمیں گناہوں سے نجات دی، تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ وی وش سب فیملیز کو جو اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتی ہیں وہ اس کو اور خوشیوں کے ساتھ اور بہتر طور پر ہر سال منانے والی ہو سکیں۔ کہ آج کا دن بہت ہی بڑا ہوتا ہے، تو ہمیں خالی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے آپ میں ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں خدا کے پاس جانا چاہیے، ورشپ کرنی چاہیے۔ تو آئی تھنک کہ ہمارا جو کرسمس ہے نا، سب سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے گاڈ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ عیسائی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کی مناسبت سے کرسمس مناتے ہیں اور ایک دوسرے میں تحفے تحائف کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ کیمرامین جہانزیب کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، کراچی میں کرسمس کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا ہے۔ شہر بھر کی بیکریوں میں کرسمس کیک کی تیاری زور و شور سے جاری ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد قومی پرچم اور کرسمس کی مناسبت سے سجے ہوئے کیکس خریدتے نظر آئی۔ اکثر شیخ رپورٹ کریں گی۔ وزیراعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر بیکریوں پر رونقیں بڑھ گئیں۔ قومی پرچم اور کرسمس کے روایتی انداز میں کیک تیار کیے گئے۔ بیکری مالکان بھی کاروبار چلنے پر خوش دکھائی دیے۔ کہتے ہیں کیک دونوں تہواروں کے امتزاج سے ایک خوبصورت مثال ہے۔ ہم رات ہی سے کیک کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، آج جس طرح سے یہ دو تہوار ہیں، ایک قائد اعظم کی یوم پیدائش ہے، دوسرا مسیحی برادری کا جو کرسمس ہے، تو اس پہ رش وغیرہ زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس، اور رات 12 بجے کے بعد سے رش اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور کیک جہاں تک بنانے کا تعلق ہے تو یہ تقریباً شام سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ 2-3 بجے سے، اور جو اس کے اسپنج وغیرہ ہوتے ہیں اس کی تو تیاری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ کیک نہ صرف خوشیوں کا ذریعہ ہے بلکہ کرسمس کے پیغام کو پھیلانے کا منفرد انداز بھی ہے۔ جی 25 دسمبر ہے، اس کے حوالے سے کیک لینے کے لیے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں گے، بچوں کو تھوڑا بتائیں گے 25 دسمبر کے بارے میں۔ اور میں کیک لینے کے لیے آئی ہوں تمام عزیزوں کے لیے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے۔ میری طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس۔ قائد اعظم کا برتھ ڈے تھا، پھر ہم نے کیک کاٹے گے۔ 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار پاکستانی عوام کے درمیان ہم آہنگی اور محبت کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس دن کو جوش و خروش سے منانے کے لیے لوگ کیک خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیمرامین عمران احمد خان کے ساتھ اقصی شیخ، سٹی 21۔
कराची में भी मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार क्रिसमस धूमधाम से मनाने में मसरूफ नजर आती है। शहर भर के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। सेंट एंड्रयूज चर्च में भी क्रिसमस की मुनासबत से इबादत की गई। दुआए तकरीबात में मसीही पेशवाओं ने अपनी तालीमात बयान की। इस मौके पर खसूसी गीत गाए गए। मुल्क में अमन व सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। दुआए इज्तिमात का सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। क्रिसमस की मुनासबत से मसीही बरादरी के रिहायशी इलाकों में खसूसी तकरीबात हुई। क्रिसमस की मुख्तलिफ तकरीबात में क्रिसमस केक काटे जा रहे हैं और सेंटा क्लॉज बच्चों में तोहफे तकसीम कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से कोरंगी क्रॉसिंग पर मेले का समा रहा। बच्चे खुशी से निहाल अपने मनपसंद झूले झूलने में मसरूफ रहे। बच्चों ने इस दिन को किस तरह एंजॉय किया, जानते हैं रिमशा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। शहर में मजहबी रवादारी की फ़ज़ा कायम। मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर मेले का समा। ये है कोरंगी क्रॉसिंग का इलाका, जहां क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों का सैलाब उमड़ आया। बच्चों की खुशी दीदनी मनपसंद झूलों से महसूस होते रहे। कोई मिनी बाइक राउंड का शौकीन तो कोई जंपिंग जैक पर उछल कूद करता नजर आया। मेरी सबको मैरी क्रिसमस, बहुत मज़ा आ रहा है क्रिसमस से झूले झूलने का, और अभी हम और झूलेंगे। आज हमारे क्रिसमस का दिन है और हमने बहुत सारे झूले लिए, स्लाइड, कश्ती, डोली, बहुत सारे झूले लिए। हमने खाना भी बहुत खाया है। आज हम लोगों ने बहुत कुछ किया। पहले हम लोगों ने कश्ती ली, फिर उसके बाद हम लोगों ने जंपिंग भी ली, पिंग भी ली, और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की और हम लोगों ने खाना भी खाया। खुशी से निहाल बच्चे क्रिसमस के इस मौके पर मेले का रुख करके खूब एंजॉय करते रहे। कैमरामैन शाहजेब के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। अब कुछ बात करें महंगाई की। महंगाई का तूफान और पानी का बहरान, लेकिन अवाम की खिदमत में पेश अफसर खान। केमाड़ी यूसी साथ के साबिक चेयरमैन अफसर खान खटक ने अपनी मदद आप के तहत इलाके में वाटर प्लांट नस्ब किया है, जिससे रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं हम जान लेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख से। बताइएगा अक्सा। जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में जहां पर गरीब आवाम का जीना मुहाल हो गया है, पानी का बहरान भी इतना संगीन होता जा रहा है। शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी पानी नहीं आ रहा है। वहीं पर ही जहां पे लोग 10,000 12,000 के टैंकर खरीद के अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, वहाँ आप मेरे कप में देख सकते हैं कि समाजी कारकुन है अफसर खान खटक, जो कि किमाड़ी टाउन के यूसी साथ के साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत गरीब आवाम के लिए वाटर प्लांट का एहतमाम किया है। यहाँ वाटर प्लांट लगाया है जहाँ पर फ्री का पानी लोगों को दस्तयाब है। हमारे साथ अफसर खान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप हमें बताएं कि आपने ये जो वाटर प्लांट लगाया है, ये आपने कब लगाया है और इसके अलावा और मजीद आपने वाटर प्लांट लगाए? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आप आए। हमारे लिए बड़ी खुशी नसीबी है कि इस दौर में आपका चैनल इस तरह लोग प्लेटफॉर्म के तवज्जो से हमारी भी कोई मतलब है कितने बड़ा काम हो रहा है। बदकिस्मती यहाँ जो कुछ मीडिया के तवज्जो से लोग पैसे देते हैं इधर उधर, तो ये आपका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने स्पेशल एक गरीब आबादी के लिए और एक अच्छे काम के लिए आप लोग आए। मैं आपको वेलकम कहता हूँ। ये 2021 में मैंने लगाया। हमारे एक डोनर साहब है सही अदनान मसूद साहब, उनकी फैमिली रियान मसूद साहब, उनके तवज्जो से लगाया 2021 में। इसी तरह माशाल्लाह पहले हम 24 घंटे पानी देते, लेकिन मिस यूज़ की वजह से तो हमने प्रेस को मखसूस टाइम दे दिया कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कर दिया था। तो अभी भी पानी चल रहा है और कराची में आपको पता है पानी कहीं अवेलेबल नहीं है। और मैं इस हवाले से रेंजर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि उनके ताउन से ये चैनल हमने फिल्टर प्लांट लगवाया, प्लस इसके साथ हमने चिलर प्लांट भी लगवाया। वो भी 24 घंटे गर्मी में पानी देते हैं और बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाते हैं। और कराची की कोने कोने से लोग पानी भरने के लिए आते हैं। एक ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग आते हैं, कराची से बाहर से लोग आते हैं। और मेरा ख्याल है कराची में ये जो आस पास की जितनी भी आबादी है वो आते हैं, यहाँ आते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा भी आपने और प्लांट लगाए हैं? इसके अलावा मैंने 2 प्लांट और लगाए हैं। एक सामने सरकारी स्कूल है, उसके बराबर में अभी मैंने उसका इफ्तिताह भी किया हमने उलमा कराम के तवज्जो से। और इसके अलावा एक और फिल्टर प्लांट है जो हमारा हज़ारा बेल्ट है अभी पब्लिक स्कूल,
वहाँ एक मैंने तीसरा फिल्टर प्लांट लगाया। जी बिल्कुल, समाजी कारकुन अफसर खान खटक हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि सुल्तानाबाद के रिहायशियों के लिए उन्होंने 2021 में ये वाटर प्लांट लगाया था। इसके अलावा 2 मजीद वाटर प्लांट इन्होंने लगाए हैं ताकि जो आवाम पानी के बहरान में दो चार है, पानी का इतना मसला है, पानी की अदम फराहमी से शहरी परेशान है, उनका मसला थोड़ा हल हो सके, उनकी परेशानी थोड़ी हल हो सके, वो आते हैं और यहाँ से पानी लेके जाते हैं। जी आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब ने 41 बहारें देख ली हैं। आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। वो पहली बार 2015 में वज़ीर आला सिंध के मुशीर बने थे। वो 15 जनवरी 2023 में मेयर कराची मुंतखब हुए। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। मुर्तज़ा वहाब 25 दिसंबर 1983 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से तालीम हासिल की, जबकि कानून की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हासिल की। उनके वालिद वहाब सिद्दीकी शोबे सहाफत से वाबस्ता रहे, जबकि वालिदा फौजिया वहाब पीपल्स पार्टी की सरगर्म कारकुन थी और रुकने कौमी असम्बली भी रहीं। वालिदा के इंतकाल के बाद मुर्तज़ा वहाब अमली सियासत से वाबस्ता हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें 2015 में अपना मुशीर बनाया। वो 2015 में पहली बार वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कानून, फिर 2016 में एंटी करप्शन के मुशीर बने, 2017 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने और 2018 में दोबारा मुशीर बराए कानून और एंटी करप्शन बने। जल्द महकमा इत्तलात का कलमदान हासिल करने में भी कामयाब हो गए। 2021 में मुर्तज़ा वहाब कुछ पार्टी रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद बैक वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मुशीर कानून और तर्जुमान सिंध हुकूमत के ओहदों पर फाइज रहे। मुर्तज़ा वहाब ने 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर हल्का PS 111 से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन इमरान इस्माइल से 22,000 वोटों के फर्क से शिकस्त खा गए। कराची में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में तो मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए कई नामों पर गौर करने और तंजीमी सेटअप के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची के लिए मुंतखब किया। कराची की ट्रैफिक पुलिस भी कायदे आज़म को खिराज तहसीन पेश करने में पेश है। पाकिस्तान चौक पर कायम सिटी ट्रैफिक सेक्शन के एहलकारों ने बाबा कौम की सालगिरह मनाई और केक भी काटा। मेराज अख्तर रिपोर्ट करेंगे। कराची ट्रैफिक पुलिस ने भी 25 दिसंबर का दिन मनाया। सिटी ट्रैफिक सेक्शन पुलिस ने 25 दिसंबर के मौके पर बाबा कौम की सालगिरह का केक काटा। पाकिस्तान हम बहुत बहुत खराज अकीदत पेश करते हैं जनाब कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने, जिन्होंने हमें एक ये जबरदस्त मुल्क दिया। सिटी ट्रैफिक सेक्शन के इंचार्ज नवाज सयाल के मुताबिक हमारा ट्रैफिक सेक्शन पाकिस्तान बनने से पहले का है और ये हर वक्त हमें बाबा कौम की याद दिलाता है। जिस बिल्डिंग में आप इस वक्त मौजूद हैं, ट्रैफिक सेक्शन जो सिटी है, ये भी देखें पाकिस्तान बनने से पहले की है। ठीक है, एक तो ये हमें हर वक्त याद दिलाती रहती है और दूसरा एक 14 अगस्त जो हम लोग मनाते हैं एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से कि हमने उस वक्त हमें ये मुल्क हासिल हुआ, तो ये हम देखते हैं कि किसके जज्बे से, किसके उससे ये हमें मुल्क हासिल हुआ है, किन बुज़ुर्गों की मतलब कुर्बानियों से, और जिसका जो इसका फाउंडर कौन है, तो फाउंडर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पुलिस एहलकारों का कहना था, हम 14 अगस्त तो जोश और जज्बे से मनाते हैं, लेकिन जिसने मुल्क बनाया हमें उसका दिन भी मनाना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे बानी पाकिस्तान जिन्होंने हमारे लिए एक अच्छी रियासत बनाई। बाहर दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोगों की ग़ुलामियाँ करते हैं, अब यहाँ अपने मुल्क में आज़ादी से रह रहे हैं, हर काम हम अपनी आज़ादी से कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास 1-1.5 घंटा था, तो उसके लिए हमने ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया। इसके बाद अभी VIP मूवमेंट सारा दिन चलेंगी, तो हम उनके साथ बिज़ी रहेंगे। सर जी, हमें बहुत खुशी है कि हमें आज़ाद मुल्क मिला कायदे आज़म की बना पे, इसलिए तो हम अपने फैमिली में भी ये मनाते हैं, इसलिए हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। अपनी ड्यूटी में से कुछ वक्त निकाल के कायदे आज़म की सालगिरह मनाने वाले एहलकार उन्हें खराज तहसीन पेश करने के बाद अपनी अपनी ड्यूटियों पर रवाना हो गए। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। आपको बताएं कि नासिर जम चौकी के अतराफ में नज़ारत कई सालों से कायम है, जिसके बायस एम्बुलेंसेज और मैयत बस के गुजरने में भी बेहद दुश्वारी का सामना होता है। IG और एडिशनल IG सिंध के अहकामात रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबशर हुसैन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहां IG सिंध और एडिशनल IG के जो है वो सख्त अहकामात हैं कि चौकी के एतराफ़ में या चौकी के बाहर जो है तो वो नज़ारत कायम ना की जाए। मैं इस टाइम जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया
थाने की हदूद में नासिर जंग चौकी के बाहर जो है वो मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन अकब में दिखाए तो ये जो है वो नज़ारत जो है वो बाकायदा कायम है गुज़श्ता कुछ सालों से। साथ ही जो है वो रक्शे, मसरूका मोटरसाइकिल जो पुलिस की जानिब से शहरियों की बरामद की जाती है वो भी जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। साथ ही जो है वो रक्शे के पार्ट्स हों, रक्शे का जो है सामान हो, रक्शे की पूरी जो है वो बॉडी जो है वो यहाँ मौजूद है। मुतअद्दिद जो है वो बाइक्स जो है वो नज़र आ रही हैं। साथ ही बाएं जानिब जो है वो मनाजिर मज़ीद दिखाए तो मुतअद्दिद जो है मसरूका मोटरसाइकिलें, स्पेयर पार्ट्स, रक्शे जो है वो बाकायदा मौजूद हैं। अब देखना ये है कि जो चौकी इंचार्ज हैं, जो यहाँ के कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO हैं, उनके जानिब से जो है वो अहकामात तो खैर कहे जाते हैं, उस पर अमल दरामद जो है वो पुलिस करती दिखाई नहीं देती। ये भी कई जो है वो सालों से इसी तरह नज़ारत कायम है। इसके अलावा दीगर भी ज़िला कोरंगी हो या दीगर अजला हो, उसमें भी जो है वो हर थाने और चौकी के अतराफ़ में नज़ारत कायम है। यहाँ भी है। अब देखना ये है कि पुलिस हो, चौकी इंचार्ज हो या SHO हो, महज दावे करते हैं या नज़ारत को जो है वो ख़त्म करके जो इसकी असल जगह है वहाँ जमा करवाते हैं। जी, अब आपको बताएं, चेयरमैन FBR का इनकम टैक्स में 1200 अरब रुपए की लीकेज का एतराफ़। साबिक सदर टिम्बर मार्केट शर्जील गोपेलानी चेयरमैन FBR पर बरस पड़े। शर्जील गोपेलानी ने चेयरमैन FBR के ऑडिट का मुतालबा कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि ताजिर मईशत का पहिया चलाते हैं, उन्हीं को चोर भी कहा जाता है। जो लोग करप्शन करते हैं उनका ऑडिट क्यों नहीं होता? टीवी पे बात करना बहुत आसान होता है, ग्राउंड में आके खेलें हमारे साथ तो बात समझ में आती है। इनका कहना ये है कि सेल टैक्स की चोरी में बड़े बड़े जो है लोग मुलविस हैं, पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते? आप ऑडिट करें ना, लेकर आए। बोलना अलग चीज़ है, आप जो है रिकवरी करें, हम मान लेंगे आपको। कोई रिकवरी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 200 धमकियाँ हैं। और अपना देखिए 1200 अरब की बात नहीं है, 12,000 अरब भी आप ले सकते हैं, बिल तो हो। इन्होंने सिर्फ अपना रेट जो है ना रेट बढ़ाना है, अपना जो है कि करप्शन का रेट बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अगर वाकई ही ये सीरियस है, हमने 55 करोड़ रुपए की एक जो है ना रिकवरी के सबूत दिए हैं, आप यकीन करो कुछ भी नहीं है। हमें भी पता है कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उसमें बाकायदा FBR के लोग मुलविस हैं और पैसा जो है उनके घर। आप सबसे पहले तो चेयरमैन FBR का मैं गारंटी देता हूँ कि आप इनका ऑडिट करें, पता चल जाएगा। आप ताजिरों का तो ऑडिट करते हैं, आप सनतकारों का ऑडिट करते हैं, आप बिल्डर का ऑडिट करते हैं, जो इस मुल्क का मईशत का पहिया चलाते हैं आप इनको चोर बोलते हैं। और जो लोग करप्शन करके पैसा बनाते हैं उनका ऑडिट ही नहीं होता। करें ना ऑडिट, आए असेंबली का कोई मेंबर आके फ्लोर के ऊपर बात करे ना कि इस मुल्क में जो करप्शन है वो पैसा जिनके पास जाता है उनका आप ऑडिट नहीं करते। आप ताजिर को, सनतकार को चोर और बिल्डर को चोर बोलते हैं। वो खुद चोर हैं, वो अपने किबला दुरुस्त कर लें। मुल्क की मईशत डूब रही है, दुबई उठ जाएगा, पाकिस्तान बैठ जाएगा। गवर्नमेंट अपना किबला दुरुस्त करे। FBR की पॉलिसी अपनी जगह है, आपने टैक्स नेट बना। हमने हमेशा जो है कुर्बानियाँ दी हैं ताजिरों ने, सनतकारों ने, हमने हर सतह पे कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे साथ बैठे, जो ये करप्शन का दरवाज़ा बंद करें, रेवेन्यू आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। इसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने चोर दरवाजे बंद करेंगे, आपका सारे मामला सही हो जाएंगे।